آج ہمارا سنڈے سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے کہ جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیرے پہ کافی عرصے کے بعد ہم نے دوبارہ سے شروع کیا. الحمدللہ پوری دنیا سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور انہوں نے بھی کیلکولیٹ کر کے مجھے بتایا کہ اپروکس 8-10 سال کا ٹائم بنتا ہے کہ جو کہ ہم نے ڈیرے پہ پراپر لیکچر نہیں دیے تھے. اور بہت سے لوگوں کو یہ والا جو سناریو تھا ہمارا زیادہ پسند آیا کہ سلائڈ ساتھ میں چل رہی تھی, وائس بہت ان کو کلیئر ملی. اور یہ چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں, یہ ایک میری بک ڈیزائن ہو رہی ہے جو کہ بہت ٹائم لے گی, جس کو میں نے نام دیا ہے آپ کا انسائکلوپیڈیا آف نالج. اس پہ میں جو میری ریسرچ ہے پوری زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق, جیسے جو لاسٹ ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ پرپز آف لائف. تو بہت سارے میرے کلائنٹ, بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ جو تھے ان کو بہت ویل ڈیفائن ہو گیا کہ پرپز آف لائف کیا ہوتا ہے, ایم آف لائف کیا ہوتا ہے. آج ہم دوسرا ایک پوائنٹ لے کر آئے ہیں, ٹائٹل ہے کہ کسی کی بات کو کتنا وزن دینا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ویٹیج دینا ہے. عارف اگر کوئی میرے کو مشورہ دے رہا ہے, میرے کو عاصم مشورہ دے رہا ہے, شعیب دے رہا ہے, طارق دے رہا ہے, احمد دے رہا ہے, منور دے رہا ہے, XYZ جتنے بھی ادھر لوگ آتے ہیں, اب وہ مشورہ دے رہے ہیں تو مجھے کیسے ان کو ویٹیج دینا ہے؟ کیا وہ بہت آنیسٹ ہے, 5 وقت کے نمازی ہیں, تو مجھے ان کی کوانٹم کی بات بھی مان لینی چاہیے ہے؟ صحیح ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی فارمولا ڈیزائن ہوگا, تو اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اب دیکھیے گا پہلی سلائڈ میں کیا لے کر آیا, اگلی سلائڈ چلائیے. Why do we choose this topic? یہ ٹاپک چوز کیوں کیا گیا؟ اگر ہم اس کو یہ لے لیں کہ کیا یہ اتنی اہم بات ہے کہ اسے ہم چوز کریں, تو اس میں دیکھیے گا میں نے کچھ مثالیں دینی ہیں. ایجوکیشن کے ڈیسیجن, میں ساری لائیو مثالیں دیتا ہوں ایسی جو کہ میرے ارد گرد ہوئی بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے بھتیجے کو ایڈمیشن دلانا تھا کسی جگہ اسکول میں. مشورہ لینے نہیں آئے, بتانے آئے. جیسے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مشورہ بہت کم لیتے ہیں, بتاتے زیادہ ہیں. کہ ہم نے ایک علاقے کا اسکول تھا جسے ہوم اسکولنگ کہتے ہیں, وہاں پہ کروا دیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کیسے چیک کیا؟ کہتے ہیں گیا تو بہت اچھا لگا ہمیں. اب بہت اچھا ورڈ ویل ڈیفائن نہیں تھا. جب انہوں نے نام بتایا تو میں نے بتایا کہ وہ شخص دھوکے باز ہے. صحیح ہو گیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید میری پرسنل جیلسی ہوگی. ود ان 1 year وہ لڑکا آوارہ ہو گیا, برے برے اس کے دوست ہو گئے, پڑھائی میں بہت نیچے چلا گیا, اور اس کا آج آؤٹ پٹ یہ ہے کہ وہ صحیح ہو کر نہیں دے رہا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو, میرا اپنا کلاس فیلو تھا, وہ بہت اچھا آرٹسٹ تھا, کئی دفعہ نام لیا, قاضی خضر حبیب, جیو کا اس میں کی جو جیومیٹری تھی اس کو لیڈ کرتا تھا, اب اپنی کمپنی چلا رہا ہے. وہ بہت اچھا آرٹسٹ تھا, ان کے گھر والوں نے اسے میتھمیٹکس میں ڈال دیا. میتھمیٹکس وہ بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا. وہ بھی لیکچر سنے گا اور اس کے بچے بھی سنیں گے, ہو سکتا ہے وہ برا لگے ان کو, لیکن بہت بہادر آدمی ہے قاضی کی جو ہے, تو وہ اس بات کو بالکل نیگیٹو نہیں لے گا. وہ کیا تھا, اگر اسی کے بجائے اسے آرٹ میں ڈال دیتے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ پاکستان کا بہت بڑا نام بنتا. لیکن خیر اس کی اسکل سوشلی بھی بہت اچھی تھی, تو وہ بہت اچھی سوشل آرگنائزیشن اپنی چلا رہا ہے. ایجوکیشن کی امپورٹنس آف دس ٹاپک ان میرج ڈیسیجن. میرے پاس لوگ آتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے سلسلے میں, یہ ہم نے لڑکی دیکھ لی, ہم نے لڑکا دیکھ لیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا چیز چیک کی؟ کیا چیک کرنا تھا؟ وہی چیزیں پوچھ لی جیسے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو, کہاں جاب کرتے ہو. دیکھ لیا ہم نے, جاب بھی جہاں کرتا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. انہوں نے جس سے پوچھا, جس سے مشاورت کی, ان کو یہ کرائٹیریا ہی نہیں پتا تھا کہ اس سے مشاورت کرنی ہے یا نہیں کرنی. بہت دفعہ حافظ عاصم یہاں بیٹھا ہے, میں نے ان کو کہا کہ آپ کے خاندان میں بہت ہی کم ہوں گے, شاید اکا دکا کوئی بندہ ہوگا جن سے مشاورت کرنی چاہیے. برا کوئی بھی نہیں ہے ان میں, 5 وقت کے نمازی ہیں, دیندار ہیں, برا کوئی بھی نہیں ہے. مشاورت نہیں کی جا سکتی, اس کا کرائٹیریا آگے آئے گا. پھر وہ ہے عاصم کہتا ہے بہت بڑا لیکچر کر دیتا ہوں, کیا کروں, زبان کا قرض ادا تو کرنا ہے. امپورٹنس آف دس ٹاپک ان چوز ڈاکٹر. کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے, کہتے ہیں جنازے میں جانا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ ایک خاتون تھی, ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی, ایک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائی, کینسر بن گیا, اووریز کا, ان کی ڈیتھ ہو گئی.
किसी ने तो बताया होगा ना कि यार वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, वहां चले जाओ। अब वो जिसने बताया था उनको पता ही नहीं था। सही है, हमारी जिंदगी हर जगह पर इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक इन शरिया टॉपिक। मेरे पास एक आज से 12-14 साल पहले एक प्रॉब्लम आया, जिसके बाद मैंने बाकायदा दूसरों को भी बताया भी, शायद आप लोगों को भी बताया होगा। उन खातून ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी, शरई एक मसला था जिसकी वजह से उनका निकाह खत्म हो चुका था। मैंने कहा जी आप तो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने पूछा नहीं? कहते हैं पूछा था। मैंने कहा किससे? कहते हैं हमारे मोहल्ले के 5 वक्त के नमाजी हैं, उनसे ये शरई मसला पूछा था। मैंने कहा मुफ्ती हैं वो? आपको यही नहीं पता है शरई मसला किससे पूछना था? सही होगी बात। ये हमारा आगे आएगा तो बताएंगे कि इसमें भी पूछना किससे, सिर्फ मुफ्ती ही नहीं देखना होता। कि आपने यूट्यूब में देखे होंगे जो मसाले का प्रचार कर रहे होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन बिजनेस। मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं सर ऐसा है कि अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करें ना तो आपको लगा दूंगा, पूरा सोलर पैनल लगा दूंगा, पर सेटअप हो जाएगा। उनकी अपना घर, अपनी सारी चीजें सोलर पे नहीं थी। सही है, तो चेक कैसे करना होगा वो आगे आएगा। बिजनेस के डिसीजन किस तरह से होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमने अभी 4, 5, 7 चीजें देखी। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे तो कपड़े की बात हो रही थी, तो आरिफ ने कहा कि मैंने सिया कभी नहीं है लेकिन मैं बहुत अच्छा सिलाई कर सकता हूं। मैंने कहा आरिफ बिल्कुल सही कह रहा है, सही होगी। वजह यह है कि इसकी बात, इसने कभी सिलाई नहीं की हुई, मैं बहस क्यों करूं? मैंने फर्स्ट स्टेप पे कर लिया कि इसने सिर्फ अपनी बात को आगे करने के लिए जुमला बोला था, इट्स ऑल राइट, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इस पे चलना है, आगे नहीं चलना। इसी की वजह आसिम ये चीज बोल रहा होता तो मैं फौरन सोचता हाँ यार, क्योंकि इसने 3 साल लगाए मैंने, वो आगे क्राइटेरिया आएगा। सही, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ताकि हम साथ साथ चलते रहेंगे। आपने देखा पिछली स्लाइड के अंदर हमने एक तस्वीर लगाई हुई थी जिसे क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं, इनके सराब कहते हैं। सहरा के अंदर जब जा रहे हो तो पानी का गुमान होता है, जैसे रोड पे भी होता है। जब गर्मी में आप जा रहे होते हो तो आप देखते हो कि रोड पे पानी लग रहा होता है। तो पिछली स्लाइड के साथ ये था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम धोखे में होते हैं। यार उसे शरिया के पॉइंट आते होंगे, उसे बिजनेस का पता होगा, उसे एजुकेशन का पता होगा, उसे सोशल का पता होगा, उसे पॉलिटिक्स का पता होगा। आप जाते हो बाल कटाने के लिए ना, वहां पे सारे ना अमेरिका की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। सही होगी। तो ये वाली चीज क्या आती, धोखा होती है। इस वजह से वो मैंने तस्वीर लगाई थी। आगे मेन स्लाइड की तरफ, स्टेप्स ऑफ फॉर दिस नॉलेज। अब समझने वाली चीज है, गौर कीजिएगा और मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कि मैंने सही किया है या नहीं। सबसे पहला स्टेप, आपको किसी ने आके कोई बात बोली, किसी ने XYZ सगीर नहीं बोलती, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज से भी रिलेटेड, सबसे पहले चेक करें, चेक हिज एंड हर और हर इंटरेस्ट। अगर मेरा कोई गर्ज होगा तो वेटेज 50% खत्म हो गया बात का। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटिक्स में इमरान खान को लाइक करता हूं, नवाज शरीफ को लाइक करता हूं, जरदारी को लाइक करता हूं और मैं ब्लाइंडली फॉलोवर्स हूं उनका, तो क्या हुआ, 50% पॉलिटिक्स में मेरी बात को वेटेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं उसके हक में ही बोलूंगा। सही होगी ना बात इस चीज के लिहाज से। तो उसमें क्या होगा कि किसी भी चीज किस्म का, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, किसी भी चीज की तरफ अगर आप चले जाएंगे, अगर मैं O लेवल A लेवल को बहुत अच्छा समझता हूं, आप मेरे से आके पूछते हो कि मैं अपने बच्चे को सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में O लेवल कहां करवाऊं, मैं चूंकि उसका ब्लाइंडली फॉलोवर्स हूं, आशिक हूं मैं O लेवल A लेवल का, मैं कहूंगा यार O लेवल। लेकिन अगर पता होगा आपका कि यार मैं बहुत ज्यादा लवर हूं उस चीज का, तो मेरा वेटेज खत्म हो जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एनी डिजीज, फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली इस किस्म की डिजीज ऑफ ग्रुप्स है जिसमें क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम जो बात कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड है, इसका कोई रिलेशन है, कोई सीक्वेंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये लग रहा है कि यार आज जो है ना एक्सीडेंट होना है, अब आप वो मशवरा लेते हो कि यार आज मैं सदर चक्कर लगा के आ जाऊं, सदर चक्कर नहीं लगाना बहुत प्रॉब्लम है, कोई वजह नहीं, मेरे क्या होगा,
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब अगर इस तरह के तो -10 और चले गए। सही होगी बात? कम टू द पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ रेलेवेंट टॉपिक एजुकेशन। अब जिसने बात की, जैसे भी मैंने आरिफ की मिसाल दी कि आरिफ के कपड़े का नॉलेज इतना नहीं है तो मैंने वेटिंग नहीं दिया, इसी के बजाय मार्केटिंग मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा, बल्कि 7 कर लें, 8 ना करें, इसलिए कि मैं इससे इख्तलाफ रखता हूं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं ले रहा, जिसकी वजह से मैं इसको 7 नंबर कर रहा हूं। लेकिन वो 7 नंबर में मैं पूरे इसको 7 नंबर देता हूं। जब भी मार्केटिंग की टिप होती है, इसको पता भी नहीं होता, मैं इसी से हिंट्स ले रहा होता हूं। क्यों? रेलेवेंट है, इसका स्टडी भी है, प्रैक्टिकल स्टडी भी है। हमें ये चीज देखनी पड़ती है। जैसे भी मैंने कहा, उस शरिया का 5 वक्त नमाज से ताल्लुक क्या है, और हमारे मुल्क का अलमिया भी यही है, तजवीज सीखे और आलिम दीन बने बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे कंट्री का इशू है। जैसे कई जगहों पे कहा जाता है, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मिनिस्ट्री उसको दी जाती है जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है सब्जेक्ट पे। हमारे इधर देखें, स्कूल कॉलेज वो चला रहा है जिसकी करियाने की दुकान थी। सही होगी इसके लिए। तो ऐसी ऐसी चीजों पे हो जाता है। पंजाब गवर्नमेंट के एक दफा वाइस चांसलर आर्मी का रिटायर्ड जनरल लगा दिया था, रेलिवेंट ही नहीं है ना। क्रिकेट में ये चीज हो गई थी। नहीं, नजम सेठी ने क्यों चला लिया, बहुत अच्छा। ये वो मैनेजमेंट का आदमी था, और मैनेजमेंट थी, वो कोई वो नहीं बना था, आपका कोच वोच नहीं बना था। दैट्स वाई हमें ये चीज देखनी है कि जिससे हम मुशावरत कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा है, अभी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बकरा खरीदे, तो मुझे कहते हैं कैसे हैं, उन्होंने वीडियो दिखाई, तो उन्होंने कीमत बताई, मैंने देखा, कहते हैं आप कुछ सोच रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं दिल नहीं रखूंगा, बिलो देन एवरेज है। कहते हैं सर मैं तो समझता बहुत अच्छा मिला। मैंने कहा कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें बकरे देखने नहीं आते, तुम्हें किसी को साथ रखना चाहिए था जिसको बकरे देखने। सही होगी बात? उसकी वजह है रेलिवेंट ही नहीं है तुम्हारा। तुम आईटी के बंदे हो भाई, आईटी का जब भी मशवरा होता है मैं उसको टॉपर रखता हूं। कितनी हो गई? 3 पॉइंट हो गए। सक्सेस अकॉर्डिंग टू टॉपिक, क्वालिटी ऑफ हिज और हर रेफरेंसेस। 2 पॉइंट को मर्ज कर दिया मेरा ख्याल से मैंने, अब 2 पॉइंट यहां पे मर्ज हुए मैं, देखिएगा। सक्सेस अकॉर्डिंग टू टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरा एजुकेशन का बहुत अच्छा वो है, डिग्री है, पीएचडी मैंने किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। इसने कपड़े का वो है, एजुकेशन ली हुई है, यहाँ से टिप्स से इसने कपड़े की बहुत ज्यादा टेक्सटाइल में ली हुई है, उसने मार्केटिंग की ली हुई है, शोएब ने फाइनेंस की ली हुई है, इसने अहमद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सब कुछ सही है, लेकिन उसके पास सक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को कभी अप्लाई ही नहीं कर सका, वेटेज कम हो गया। सिर्फ ये नहीं देखना पिछले पॉइंट के लिहाज से, एजुकेशन सर ने कहा था चेक करो या डिग्रियां कितनी जमा की हुई हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सक्सेस नहीं। काउंट सक्सेसेस। सही होगी बात यहां तक? क्वालिटी ऑफ हिज और हर रेफरेंसेस, ये अलग होगा, इसको 4.1 पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। वो बातें करते हुए जो रेफरेंसेस देता है, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। आज से चले जाओ 20 साल पहले, एक दफा मैंने इखबार का रेफरेंस कोट किया। मैंने इखबार में पढ़ा था कहीं, और मैं किसी जगह लेक्चर दे रहा था, और मैंने कहा जी ये चीज है, तो आगे से एक हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा जी कहां से आप कह रहे हैं? मैंने रेफरेंस दे दिया इखबार का, क्रॉस चेक किया, वो गलत थी चीज। तो मेरे उस वक्त के जो उस्ताद थे उन्होंने कहा था कभी भी इखबार का रेफरेंस नहीं देना, ये रेटिंग के चक्कर में अपनी मर्जी की ना बातें चेंज कर देते। मफहूम जब डेप्थ में जाओगे तो वही बात हो रही होगी, लेकिन क्या होगा? मफहूम चेंज होगा। सही होगी बात? तो क्वालिटी ऑफ हिज और हर रेफरेंसेस, क्या 5 स्टार बोलता है? नहीं बोलता। जैसे डॉक्टर की बातें हैं, 5 स्टार वो आपको रेफरेंस देता है कि हाँ यार ये वाली बीमारी ऐसे होती है, तो हम चलेंगे हाँ यार वेटेज है। इसी तरह शरिया की बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं शरिया के अंदर। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं नहीं जी ये वाली चीज तो ऐसी होगी ही नहीं। मैंने कहा चले यहीं पे रुक जाते हैं, क्यों नहीं होगी? कहते हैं क्यों का नहीं पता, होनी तो नहीं चाहिए है। या फिर कोई किताब क्या कह देंगे, छोटा सा वो इसमें जुम्मे के बाद कभी कभी बैठ रहा होता है ना, इसमें लिखा हुआ था। इसी तरह वो एक दफा मैंने, बहुत पुरानी बात है, 16-18 साल, मैंने फिजिक्स की एक डेफिनेशन अपने स्टूडेंट्स को लिखवाई, उसके टीचर ने गलत कर दिया, बहुत बुरा भला बोला। मैंने उसको 10 इंटरनेशनल 5 स्टार बुक्स के प्रिंट आउट दिए,
फोटोस्टेट, और कहा कि टीचर भी किसी एक किताब का दे दे। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं गलत है तो गलत है, रेफरेंस देने की मुझे क्या जरूरत है। उनका फिर वेटेज नहीं होगा। रियलिस्टिक एग्जाम्पल रिलेटेड टू टॉपिक। अब क्या होता है कि कभी कभार हम बातें करते करते ना मावराई मिसालें देना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार सोशली हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे, अपने बच्चों को, जैसे फैमिली काउंसलिंग में मेरे पास आते हैं, देखिए सर अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट दें तो खुद ब खुद बच्चे अच्छे बन जाते हैं। ये अच्छे के वर्ड को डिफाइन करो ना, कैसे वो वर्ड अच्छा क्या होगा। सही है सर, देखिए क्या हो, पुराने दौर के आप उलमा लेना, वो भी तो ऐसे करते थे। अरे भाई पर्टिकुलर मिसाल में कौन से आदमी की बात कर रहे हैं, सही होगी। तो जो शख्स रेलेवेंट रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं देता तो हमें उसकी बातों को भी वेटेज देने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस हिस्ट्री, ये सारी चीजें हुई, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, एक मेरे साथी हैं, जूनियर है काफी ज्यादा, उनसे शुरू में मैंने कुछ बिजनेस डील की 1 से 2, उन दोनों में उनके नंबर हुए -10। वो दिन है आज का दिन है, मैंने उनसे कभी डील नहीं की, क्योंकि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या कह रही है, ऑनेस्ट नहीं है। सही है। तो ये किसी भी शख्स की बात में वजन चेक करना है मुशावरत में, तो ये पॉइंट्स मैंने डिजाइन किए जो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगर आपने कुछ बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर सक्सेस का कहा, सक्सेस नहीं हो उसके पास, तो सर सक्सेस किससे रिलेटेड होगी आपको? उससे जिस चीज से कि वो बात कर रहा है। अगर हम कोई भी, आप ही से बात ले लेते हैं, अगर हम ये बोलें कि यार शोएब मैं ना ऐसा एक अकाउंट का वो बनाना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर कि वो सैप वैप की तरह कोई बहुत हैवी चीज भी ना हो, लेकिन मेरा कोई बिजनेस का मॉडल चल जाए। अब आपकी उससे रिलेटेड सक्सेस हैं, सही होगी। आपने जस्ट बीकॉम किया, जैसे आपके दोस्तों ने किया हुआ होगा, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल कोई जॉब नहीं की, कोई उनके पास सक्सेस नहीं है, तो आपको मैं वेटेज ऊपर दूंगा। आपके सीनियर जिनके पास बहुत सारी सक्सेस होंगी उनको आपसे भी ऊपर दूंगा। जैसे मैं रूहानियत भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब कभी मैंने कोई पेशेंट सही ना किया हो तो आप मेरे को ये जरूर वेटेज देंगे, सर ने मेहनत की है, सर के फादर बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी बातों का एवरेज ही रखें, सही है। उसके साथ साथ जब मेरा ये एक्सपीरियंस भी 20 साल का, और आपने देखे माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट यहाँ से सही हुए, सक्सेसेस आ गई, सही है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है वो करते हुए मुझे अभी से 3रा साल है। शुरू के 1 साल में मैंने बहुत ज्यादा जान मार के अपने पैसा लगा के अपने क्लाइंट्स को बिजनेस खड़े करवाए। क्यों? मैं सक्सेस अपने नाम के साथ लगवाना चाहता था। तो उस टॉपिक से अब हमारे पास कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि हम 100% लेते हैं डिसीजन टोटल हमारी लाइफ के, उसमें से 20% डिसीजन हमारे वो गए जिसमें हमें वाकया में ही मशावरत के बगैर स्टेप नहीं उठाना चाहिए। 80% एट द स्पॉट और सेम टाइम और उसी वक्त लेने होते हैं डिसीजन। तो फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे, ये सब चीजें कहाँ चलेंगी, उस वक्त मैं अपनी नॉलेज से लेना चाहता हूँ। सही हो गया। अब आरिफ ने जो बात की ना वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड पर है। इस स्लाइड से रिलेटेड कोई बात है तो करें, वरना मैं आरिफ के क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। आगे चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पर आरिफ ने ये कहा कि 20% जो हैं वो हमारे काम मुशावरत के, 80% तो हमें खुद चलना होता है, उसी वक्त डिसीजन लेना होता है। अब बात ये है, आप अभी थोड़ी देर पहले कहां से आ रहे थे? टाइल्स लेने गए थे, सही है। अब आपने उस बंदे की बात को जज करना है, मुशावरत होगी ना, ये उसको चेक करने का जो जो आपको डेटा पीछे से मिल सकता है वो आप करें। हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने वो लेना था आपका स्टेबलाइजर। मैंने उनको यही पॉइंट बताया, मैंने कहा उस बंदे से पहले कभी डील की है आपने? कहते हैं 2 से की थी। मैंने कहा उनमें से कहते एक तो धोखेबाज है। मैंने कहा क्रॉस हो गया, सही है इसलिए। फिर मैंने कहा आपका अपना कोई नॉलेज है इससे रिलेटेड? कहते नहीं। मैंने कहा आपके किसी दोस्त का हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उनको साथ लेके दें, सही होगी बात। अब बात यह कि वो जो हमारा पिछला नॉलेज है वो अप्लाई कैसे होना है, हमारी जिंदगी के हर मौके पर अप्लाई होना है।
آپ نے جو بات بولی نا وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ بات ہے کہ ہمیں خود بھی یہ بننا ہے کہ اگر کوئی ہم سے مشاورت کرتا ہے تو ہم نے جو پچھلے پوائنٹ تھے نا, اگر اس پہ ہم پورے اترتے ہیں تو ہم اس کو مشورہ دیں, ورنہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہوں گے. اگر کوئی آ کے میرے سے جو میری ڈائمینشن ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پوچھے گا تو میں بتا رہا ہوں گا تو حق بجانب ہوں کہ میں نے اس پوائنٹ کو بولا ہے تو اٹس آل رائٹ. لیکن نہیں ہے تو مجھے اسے کہنا چاہیے کہ یار یہ چیزیں میرے کو پتا ہوں گی تو میری بات کو اتنا ویٹیج دینا. صحیح ہوگی. وہ بقیہ 3 چیزیں فار ایگزامپل نہیں ہے تو میری بات کو ویٹیج نہیں. اب اس سے کیا ہو گیا, اس سے دیکھو یہ فائدہ ہو گیا جو میں نے اس میں لکھا کہ ایک تو یہ کہ ہر طرح کے ڈیسیجن میں یہ سب پوائنٹس آ گئے. اور آپ دیکھیے گا, آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ کیا ہوگا کہ وہ ہر طرح کے آپ کے ڈیسیجن میں چیز آ رہی ہوگی. صحیح ہوگی. اچھا دوسری میں نے کیا بولی, اسیسمنٹ آف پرسنالٹی. ہر بندہ جو آپ کے ارد گرد ہے آپ کو جج کرنا آ گیا. صحیح ہے. آصف جب کر رہا ہوگا, بات کر رہا ہوگا, مجھے پتا چل جائے گا یار یہ کس سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے, مجھے کس چیز پہ سے مشاورت کرنی ہے, کس چیز پہ نہیں کرنی. شعیب ہو گیا, احمد ہو گیا, طارق ہو گیا, عارف ہو گیا, جو بھی ایکس وائی زی سارے ارد گرد میرے ہوتے ہیں, آرام سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو کیا ہوگا, پرسنالٹی اسسمنٹ جو ہمارے ارد گرد ہیں, اگر ہم اس فارمولے کو اپنی پرسنالٹی کے پارٹ بنا لیتے ہیں. پرسنل گرومنگ, یہ آپ والی بات میں اپنے پہ بھی کر رکھوں نا, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا چپڑے مارنا. تو ایسے نہ ہو کہ ہر بات میں بولوں. اچھا میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یار الیکٹریکل کا اس کا تجربہ نہیں, میں کام کر رہا تھا کسی الیکٹریکل چیز, سر لائن میں کر دیتا ہوں. جب آپ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ مشاورت کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں خاموشی بہتر ہے اس میں. صحیح ہو. تو پھر ہماری باتیں ایک تو مخصوص ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو وہ دینا چاہتے ہیں مشاورت, پھر بھائی اپنا سٹینڈرڈ بنائیں نا. جو چیزیں وہاں فٹ بیٹھ رہی ہیں اس پہ سٹینڈرڈ بنائیں اپنا. صحیح ہوگی بات. تو کیا ہے کہ یہ والا جو ایک آج کا ٹاپک ہم نے کیا بہت اہم ٹاپک ہے. میں نے جو یاد ہوگا شروع میں بتایا, میرج ڈیسیجن ہے وہ غلط ہو رہے ہیں, شریعہ ڈیسیجن غلط ہو رہے ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیسیجن غلط ہو رہے ہیں, دوائیوں سے ریلیٹڈ ڈیسیجن غلط ہو رہے ہیں. بے انتہا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ادھر پہنچ ہیں. صحیح ہوگی. اچھا اس میں کوئی چیز پوچھنی ہو اگر آپ کو لگ رہا ہو. اچھا پیچھے والی چیزیں سلائڈ مل رہا ہوں, پیچھے والی سلائڈ اور یہ والی سلائڈ کمبائن کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کسی سے جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے بات چیت کے دوران ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط. بالکل صحیح ہے. مور دین 500. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چاہے میں کال پر ہوں یا میں کسی بھی میٹنگ کر رہا ہوں, میں آدھے میں بات جب چینج کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا وہاں کام ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس سے آگے میں نے چلانا نہیں چاہیے. وہ اس فارمولے تک بس پورا اتر رہا تھا. اس لیے کہ 6 کی 6 چیزوں پہ پورا اترنے کے لیے انسان کو اپنے پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ لانا ہے کہ لوگ آپ سے مشاورت کریں آ کے, آپ پورے اترے نا پھر ان سارے اسٹینڈرڈ پہ. صحیح ہوگی اس کی. اچھا یہاں تک ہو گیا. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں گے ہم. افیکٹ کیا ہوگا, یعنی کہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ بس میں نے آپ لوگوں پہ بھرم دینے کے لیے یہاں کہا کہ یار چلو بہت سارے آپ ورلڈ میں میرے کلائنٹ بن گئے, ان کو بھرم دینے کے لیے میں نے ایک نیا ٹاپک کر لیا. ایسا نہیں ہے. جتنا کچھ الحمدللہ اب ہو رہا ہے نا, ایک نے میری کلائنٹ ہے لڑکی, اس نے مجھے کال کر کے کہا یہ ٹاپک کیا ورلڈ سے کوئی بھیجتا ہے آپ کو, یا آپ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر سنتے ہیں تو اس سے آتے ہیں کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ ٹاپک ایسا ہے میری زندگی کا نچوڑ. ایجوکیشنل میرے کلائنٹ ہیں, میرے ہیلتھ کے لحاظ سے ہیں, سوشل ہیں, جو میری 5 سے 6 ڈائمینشن بنتی ہیں. میں نے اس میں دیکھا کہ کہاں پرابلم ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, کوئی بھی نئی چیز پتہ ہے کیسے ایجاد ہوتی ہے, کیسے ایجاد ہوتی ہے, کوئی آئیڈیا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ اس کی ضرورت ہو. ہاں, معاشرے کا کوئی پرابلم اٹھایا جاتا ہے, اسے سالو کر دیا جاتا ہے. اب میں نے جو یہ ٹاپک اٹھائی ہیں نا, یہ پرابلمز ہیں. میں نے تو آپ کو لائیو چیزیں بتائیں. ایجوکیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے اس بچے کے ساتھ کیا اور ارد گرد ہو رہا ہے. ہیلتھ میں آپ کے سامنے ہیں, آپ ڈاکٹروں کے پلے پڑتے رہتے ہو,
मैं कह सकता हूँ बड़ी, इससे हाफिज इसको बुरा नहीं मानेगा, इनके घर में एक पेशेंट था, उनका वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था जो रूहानियत होता है जिन विन करने का, 11.5 लाख इन्होंने लगाया उस पर, और मेरा ख्याल से जब मेरे से आए थे 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव थे। उसके बाद भी इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट है, समझ ही नहीं सके उस बात को जो मैं कर रहा था। क्या था वजह ये था कि जिनसे मुशावरत करते थे वो स्टैंडर्ड पे ही पूरी नहीं करते। सही होगी बात। तो क्या है पोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस नॉलेज, क्या होगा? बहुत सारा वक्त बच जाएगा हमारा, राइट टारगेट्स हमारे हो जाएंगे। सही है कि क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर मेरा बीमार है ना, तो एक आएगा वो बोलेगा यार मुझे लगता है कि इसको जो है ना इसका पैर खराब है। अब उसका कोई हेल्थ का नॉलेज ही नहीं है। इसी की वजह कोई डॉक्टर होगा और वो अगर बता रहा होगा कि मे बी जो है ना उसने कोई खराब चीज खा ली है। जैसे मैं एक दफा वो एक मेरी स्टूडेंट है और क्लाइंट भी है, उसकी कैट बीमार हो गई, तो मैंने जो कैट का मेरा लड़का है उसको कॉल की, तो उसने 2 सवाल किए और मुझे बता दी। कहते उससे पूछेगा उल्टी की है उसने, कॉल पे थी वो दूसरी लड़की, मैंने कहा हाँ कह रही है, कहते ग्रीन कलर की है। तो इसने पूछा डायरेक्ट ये टेंजिबल क्वेश्चन, मैंने उससे कहा ग्रीन के लिए कहते हैं, कहते आप उसको बोले छोड़ दें, उसने वो खा ली है, छुपकली खा ली है। ट्राई करनी है तो फिर ऐसी ट्राई है कि एनीमिया दे दें, पेट साफ करें शायद हो जाए, उसके बाद फिर उसको 3 इंजेक्शन लगाने पड़े। क्या था उस पे वो पूरी चीजें पूरी कर रही थी ना। सही होगी। तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत टेंजेबल हो जाएगी। एग्रीड और नॉट? अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा ना। कोई क्वेश्चन? वैसे नॉर्मली आदमी अप्लाई तो कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि अप्लाई ना कर। मुश्किल है, मेरे को 1% लोग भी ऐसे नहीं मिले, तो इसलिए कि दोबारा आप जाइएगा उस स्लाइड पर, वो 6 चीजें देखिएगा, और मैं आपकी लाइफ को जानता हूं, आप उसमें से 2 से 3 पॉइंट पे डिसीजन ले जाते हो। नहीं बात तो सही है, लेकिन कुछ हद तक तो अप्लाई हुआ ना 3, मतलब एक कोई देखो 3 क्या होता है, जैसे पूरे झूठ से ज्यादा आधा सच खतरनाक होता है, वैसा ही वो है। देखो एक चीज मेरी याद रखिएगा, अभी पिछले 6 महीने से ना मैंने अपने आप को थोड़ा सा दोबारा रोक लिया। क्या हो रहा था, मैं दोबारा बाहर निकला, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत अल्लाह ने इल्म दिया है, कामयाबियां मिलना शुरू होती है ना तो बस भागना शुरू कर देता हूं, मोमेंटम मिल जाता है। फिर मैंने कहा नहीं, जिंदगी एक दफा मिली है, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखेगा। अब वो 3 और 2 चीजें अप्लाई करके आप जो जिंदगी में 800% रिजल्ट दे सकते थे, आप 200% भी नहीं दे रहे, तो ये तो मजा तो नहीं है ना। चीज तो पूरी मजेदार होनी चाहिए। सही होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाब रहेंगे। सच चीज का अस्सलाम वालेकुम।